On 9th November 2019, the Supreme Court of India delivered its verdict in a case that defined the course of modern Indian politics, the Babri Masjid Ram Janmabhoomi dispute. Long story short, it was a title dispute over the location of the Babri Masjid in Ayodhya. Built by Mughal general Mir Baqi in the honor of Emperor Babur, many Hindus believe that the mosque was constructed over the ruins of a temple. They also believe that the temple marked Lord Ram's birthplace. After a long-drawn political and legal fight, in 2019 the top court ruled that the 2.7 acres of disputed land should be handed over to a trust which was to be formed by the central government to build the Ram temple. The court also ordered the government to give an alternative 5 acres of land in another prominent place in Ayodhya, not very far from the disputed site, to the Uttar Pradesh Sunni Central Waqf Board for the purpose of building a mosque as a replacement for the demolished Babri Masjid. Cut to 2024, as lakhs of devotees throng Ayodhya ahead of the consecration of the Ram Mandir, a strange silence shrouds the site allotted to the mosque, with no construction having taken place. To understand why, we met Azam Qadri. He is the president of the Sunni Central Waqf Board subcommittee in Ayodhya. मस्जिद डिले का कारण दो चीज़ें हैं. एक तो पहले उस मस्जिद का नक्शे नहीं पास हो रहे थे और उसके बाद में फिर ये हम लोगों की सोच पहले थी कि मस्जिद बना दें और म्यूज़ियम लाइब्रेरी. लेकिन अभी एक थोड़ी सी हम लोग की एक मीटिंग हुई है हमारे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड कमेटी की बॉम्बे वगैरह में, तो उसमें हुआ कि एक कैंसर का हॉस्पिटल बन जाए. तो उस कैंसर के हॉस्पिटल के लिए हमको ज़मीन कम पड़ रही थी, तभी ज़मीन की और परचेजिंग की गई है और ज़मीन की परचेजिंग के साथ साथ खाली मस्जिद बनना होता तो अब तक बन गया होता. The entire complex of the mosque is expected to include an Indo-Islamic research center, a super speciality hospital, a library, a museum, a community kitchen, and a cultural center. It was also claimed that the capacity of the hospital would be 100 beds, which will be further boosted to 200. Similarly, food will be cooked daily for 1,000 poor people in the community kitchen, which will later be expanded to be able to feed 2,000 people. But Khalik Ahmed Khan, a paralegal who has documented the title dispute proceedings for over 2 decades, says that there's more to this than meets the eye. सुन्नी सेंट्रल बोर्ड के हाथ में कंस्ट्रक्शन है, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी उसकी फंडिंग करते? मस्जिद को नहीं फंडिंग करनी थी, फंडिंग तो उन्होंने करना था सुन्नी सेंट्रल बोर्ड को, जिससे वो लाखों करोड़ों रुपए कमा भी रहे हैं. सुन्नी सेंट्रल बोर्ड तो कमा रही है ना, तो वो फंड को क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा है? स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं उन पर दबाव डाल रही कि आप फंड को इस्तेमाल करिए, आपके पास पैसा है, ना दें. हम कहते हैं अगर ये गवर्नमेंट ना भी दे मस्जिद बनाने के लिए पैसा, तो सुन्नी सेंट्रल बोर्ड अफोर्ड कर सकता है. और जब अफोर्ड करेंगे तो बहुत से लोग डोनर्स भी डोनेट कर देंगे. मस्जिद कहाँ पर डोनेट करेंगे, चाहे उसकी वैलिडिटी माने या ना माने, जो डोनेट कर देंगे लोग. तो इनिशिएटिव जो लेना चाहिए था सुन्नी सेंट्रल बोर्ड को, वो नहीं ले रहा. Muslim residents of Ayodhya, including those whose family members were killed in December 1992, as violence broke out after thousands of car sevaks led by the Vishwa Hindu Parishad and other allied organizations marched to demolish the Babri Masjid, remember the horrors of those days, but have made their peace with the temple. सामने मस्जिद पे पहले हमला बोला गया 8 बजे, कुरान शरीफ का पारा फाड़ के फेंका गया जो है रोड पे, तो उसी भीड़ में हम लोग बीने जो है. उसके बाद हमारे घरों पे हमला बोला गया, तो हम चले गए थाने की तरफ, तो हमारे वालिद साहब दूसरी तरफ चले गए, तो उनको जो है वहीं पर मार दिया गया जो है, हमारे चचा को, हमारे वालिद साहब. हाँ, और हमारे जिनके घर में वो घुसे थे पीछे, वो भी मुस्लिम थे, वहाँ उनका भी इकलौता बेटा था, बाप दोनों भी, वो भी मारे गए. 4 लोग मारे गए थे पीछे, हमारे घर के पीछे. आपकी मंदिर बन रही है, हम खुश हैं. सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया एक तरफा, उससे भी हम खुश हैं. लेकिन आपने ये वादा किया था कि मस्जिद भी अयोध्या में ही बनेगी. अब आपने अयोध्या ज़िले में दे दिया, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर. अब जो आदमी यहाँ के रहने वाले हैं, वो सुबह 4 बजे उठ के 25 किलोमीटर जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो पता चला एक चक्कर आदमी गया, एक चक्कर आया, शाम हो गया.
अरे बड़ा नुकसान हुआ, कम से कम 20 साल पीछे चले गए हम लोग। बड़ा अच्छा कारोबार हम लोगों का था अयोध्या में, तो बर्बाद हो गया, तब से आज तक नहीं उभर पाए। But many Muslims also feel that supporting the construction of the mosque as a replacement for the Babri Masjid will pave the way for other mosques to be displaced in the same way in future. हम अगर उसको आज एक्सेप्ट कर लें, उस फैसले को कि हाँ वो हमें बाबरी मस्जिद के अल्टरनेट साइड मिली है, तो अल्टरनेट तो 3000 हमें देनी पड़ेगी, फिर छोड़ना पड़ेगा 3000 मस्जिदों को। अगर ये वर्ड ना लिखा होता इन प्लेस ऑफ बाबरी मस्जिद 5 एकड़ ज़मीन दी गई, तो मुसलमान एक्सेप्ट कर लेता, कहते मस्जिद के लिए भी हम ज़मीन दे रहे हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद के एवज में दे रहे हैं, ये गलत है, ये सेंटेंस ही गलत था। तो ये गलत प्रेसिडेंट सेट करता है और हाँ। आगे भी फिर इसकी वजह से और जो मस्जिद है उन पे खतरा आ सकता है। और खतरा है ही है, देखिए वो तो, और अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते तो किसी मस्जिद को कह देते कि ये सब यहाँ तो राम लाला खुदाई करे, ये ऐसा ही रिपोर्ट मंगाइए, जो हो रहा है जैसे